Very good. Sorry. So now the coefficient of compressibility is defined as the decrease in White's ratio per unit increase of pressure. It is natural that whenever you increase the pressure, there is decrease in White's ratio. The ratio of decrease in White's ratio by increase in pressure is called the coefficient of compressibility. Coefficient of compressibility. So coefficient of compressibility is denoted by AV. AV is equal to delta E by minus delta E. This becomes minus automatically. So delta E by delta sigma dash, that is E naught minus E by sigma dash minus sigma O dash. For a given difference in pressure, the value of compressibility decreases as the pressure increases. तो याद रखो, coefficient of compressibility कम होते जाता अगर से प्रेशर बढ़ते जाता. तो just you remember this much. AV, that is coefficient of compressibility, is given by E naught minus E divided by sigma dash minus sigma O dash. Sigma O dash. Okay? I think I didn't share with you the notes of permeability. Only 2 chapters I share. One is compaction and another is first chapter. So I will share the permeability notes and then consolidation notes. And apart from this, within 1 or 2 days, I will share the note MCQs also, because that is also very important. So right now you start from for university exam also. You go through all MCQs. So I will tell you the best thing for preparing MCQs is the things which I have given you. I will give you, you go through all those MCQs. Then one book is there, Aurora. For every chapter in the end, they have given 8 to 10 MCQs. And those MCQs are very important. I have found that those MCQs are generally from exams. So that also you can form. I will prepare that also. Everything I will prepare and I will share with you maximum. Okay. So now, okay, you prepare for GATE or any exam also, but university exam are also simultaneously important, and they are now nearby because it is 16th December. So hardly within 20 days, 22 days, you have to face the exam. Okay, so that's why I will share those things. You go through that one. So now coefficient of compressibility is defined as the ratio of change in White's ratio by change in pressure or increase in pressure. क्योंकि pressure शुरू में कम रहता, बाद में बढ़ जाता, so that it will give you. So formula you remember, compression index का क्या formula था? Compression index का liquid limit दिए जब क्या formula था? वो 2 type के लिए है, और तीसरा है coefficient of compressibility. And coefficient of compressibility, AV is given by E naught minus E divided by sigma dash minus sigma O dash. For a given difference in pressure, the value of coefficient of compressibility decreases as the pressure increases. So now next is coefficient of volume change, that is MV. After this AV, this is MV. I told you maximum formulas are there. Concept अब कुछ है नहीं. ये वो compression index क्या था? वो प्रेशर वर्सेस वाइट था स्लोप. यहाँ पर ये भी इंक्रीज इन प्रेशर विद चेंज इन वाइट्स रेशियो है, इसका कोएफिशिएंट है. और नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, दैट इज MV. Coefficient of volume change, that is MV. The coefficient of volume change or the coefficient of volume compressibility is defined as the change in volume of a soil per unit initial volume due to the increase in the pressure. So it is given by this formula. So this is the definition. Coefficient of volume change, it is denoted by MV, and coefficient of volume change is given by minus delta E, means change in White ratio, divided by 1 plus E naught divided by 1 plus delta sigma dash. Delta sigma dash means sigma dash minus sigma O dash only. Change. Delta E means E naught minus E only. Or substituting all these, so this will becomes delta E by delta sigma dash is AV.
So delta E by delta sigma dash is AV. So we get mv is equal to AV upon 1 plus E naught. M1 plus E naught. सगळे टेस्ट होते त्याच्यामध्ये हे नव्हतं कॉम्पॅक्शन नव्हतं हा कॉम्पॅक्शन फार टेस्ट आहे म्हणजे फक्त एमबीडी आणि ओएमसी काढून केलं हा ना मुळे नाही फार इम्पॉर्टंट टेस्ट आहे सगळे जर टेस्ट होतं नाही कॉम्पॅक्शन काय करतो मस्त आहे ते नाही तर होतं मला माहिती ते काय करतो आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये कोणती टेस्ट आमच्याकडे जर व्हायचं प्रश्न आहे आम्हीच करू sorry. So now see here, mv is equal to minus delta E by 1 upon E naught, 1 upon delta sigma dash. So delta E by delta sigma dash is E1 and this value is EV. So if you substitute that value here, so we get mv is equal to AV upon 1 plus E naught. Please remember, ये सब छोटे-छोटे calculation MCQ में पूछता. Find the coefficient of volume change. mv is equal to, उसमें पहले AV निकालना. AV का क्या फॉर्मूला है? ये है. तो ये फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है. सो दिस इज कंप्रेशन इंडेक्स, पिछला फॉर्मूला था. नाउ इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये फॉर्मूला है. एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज. क्लियर? एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और नहीं सर आप ऐसा पढ़ाओ, ये करो, यहाँ तक ये पढ़ो, इसके बाद ये करो, ऐसा कुछ है, या नोट्स शेयर करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आपकी जो डिफिकल्ट है आप इंडिविजुअली भी आप यू कैन डिस्कस विथ मी. बट व्हाट आई वांट इज, माय अल्टीमेट एम इज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट जियोटेक. हाँ, बी सेक्शन वालों को उतना मुश्किल नहीं होता, तो ए सेक्शन को मुश्किल होता. अभी देखिए थोड़े बहुत मैं वर्चुअल लैब्स करा रहा हूँ, टाइम भी कम है, कॉम्पैक्शन और डायरेक्ट शियर टेस्ट सब वर्चुअल भी कराऊंगा. लेकिन इमीडिएट आफ्टर द एग्जाम, मोस्टली आफ्टर गेट एग्जाम, आपके फरवरी के एंड में आप, हमारे पास डिजिटल लैब है, हमारे पास डिजिटल लैब है. प्लीज प्लीज उस लैब का फायदा ले लो आप. हम लोग आपको सिखाएंगे पूरा डिजिटली, पूरे लैब एक बार आप कर लो. हर एक्सपेरिमेंट आपको करने आना. हो सकता है डिप्लोमा के लड़के बी सेक्शन के किए होंगे, लेकिन जो ए सेक्शन के नहीं किए, प्लीज करो. जब आप लैब को करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट को, किसी भी चीज का एकदम दिमाग में अच्छी तरह आता समझ में. सिर्फ पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से भी अच्छा है. अब कोर कटर है, मैं शायद कितना भी बताऊं आपको, आप फील्ड में जाके करने से फील्ड डेंसिटी कैसा निकालना मालूम होता, कॉम्पैक्शन कैसा है. तो ये लैब्स आप, और इतना दिन भी नहीं लगता. अगर से आप फरवरी के एंड में 2-3 दिन भी रेगुलर आए ना, रोज 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. 3 दिन में पूरे लैब्स खत्म हो जाते हैं आपके. पूरे लैब्स, जितने लैब के एक्सपेरिमेंट है हमारे, पूरे खत्म होते हैं. और ये मैं लास्ट ईयर के बच्चों को भी बोला, वो लोग भी आए नहीं. खैर अब तो कोरोना ही चल रहा ना, उनकी भी कोई गलती नहीं है. तो ये लैब करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का. इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट्स, नो, you will understand the concept very well. Okay, so what I was telling that डेट द्यायला काय, मी आय वॉज बिझी इन ऍडमिशन प्रोसिजर. क्लास थेअरी पण घेणं झालं नाही मला. ऍडमिशन प्रोसिजर होलंय. आता तुमची युनिव्हर्सिटी एक्झाम आले सर, आता तुम्ही पण बिझी येऊ शकता. एक्झाम झाल्यानंतर या 1-2 दिवस, आता त्यापर्यंत नको. बट आता आय डोंट थिंक दॅट वी कॅन डू. इवन इफ यू कम, देखो तुम्ही येतात म्हणा तर नाही सर एक्झाम राहू दे, येतात म्हणजे 1-2-3 एक्सपेरिमेंट करू आपण. किती झाले तेवढे तर करून टाकू. शॅल आय फिक्स द टाइम? जे येतात मला तुम्ही एक लिस्ट द्या,
Yes, sir. लिस्ट द्या. तुम्ही हॉस्टेलचे कोण वैभवी निकिता भागवत तुम्ही लिस्ट तयार करा. तुम्ही हॉस्टेलचं पंढरपूरचे जवळचे कासेगाव असेगाव जवळचे कोण आहेत स्नेहल पाटीलकडे लिस्ट द्या. बॉईजचे कोण तर एकटे पुढे वा प्रथमेश कोण आहेत प्रथमेश शुभम असं एक लिस्ट करून मला द्या. मी त्या हिशोबाने तुम्हाला टाइम देतो. काहीतरी एक्सपेक्ट होते तुम्ही 2 तास आलात म्हणजे 2 तास आलात म्हणजे 4 एक्सपेक्ट तर होऊन जातील. ऍटलीस्ट आयडिया तर होतोय की तुम्हाला. रिझल्ट तुम्ही नंतर कॅल्क्युलेशन करत बसा. एक्सपेक्ट तर करू शकतो तुम्ही. इट ऑल अप टू यू. तुम्ही कसं म्हटलात तसं. आणखी आठवण ठेवून घ्या प्रॅक्टिकल केल्यानंतर आणखी क्लिअर होते ते आयडियाज. Okay, so coefficient of compressibility is clear to you now. Then I define coefficient of volume change. So mv is equal to av upon 1 plus e naught. Av is coefficient of compressibility. Av is given by e naught minus e divided by sigma dash minus sigma o dash. Then when the soil is laterally confined, as I discussed in the beginning, the change in the volume is proportional to the change in thickness. ओके, वेन लॅटरली कन्फाईन केल्यानंतर हाईट वरच डिपेंड. बघा व्हॅल्यूम म्हणजे एरिया इंटू हाईट. जेव्हा तुम्ही कन्फाईन केलात एरियाला थांबवलात तर व्हॅल्यूम कशावर डिपेंड करणार होता हाईटवर. हाईट जास्त झाल्यानंतर व्हॅल्यूम पण जास्त राहणार. वॉल्यूम कम हाइट कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम होता है ना. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं हम, कन्फाइन कर रहे हैं, हिलने नहीं दे रहे उसको. तो आप अगर से हाइट ज्यादा करे तो वॉल्यूम बढ़ता, हाइट कम किए तो वॉल्यूम भी कम होता. सो व्हेन द सॉइल इज लैटरली कन्फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम इज proportional to the change in thickness. Change in volume is proportional to the change in thickness, and the initial volume is proportional to the initial thickness h naught. The mv is equal to delta h by h naught into 1 by delta dash. This formula will come. This formula will come instead of White's ratio, all these things he has taken this formula. So now thus the change in thickness delta h due to pressure increment is given by this formula. Again, this is one more important formula. So change in thickness is given by mv. What is mv? Mv is coefficient of volume change. Coefficient of volume change into initial height into change in pressure. Delta means always change. Delta means change. This formula also you remember. This formula also you remember. So please, in this slide, what you have to know, that is PPT number 33. What are the things you should know is, first of all, you should know what is spring analogy and how it is compared with actual consolidation. त्याचे conclusions बघून घ्या. इथं everything laterally confined करता एक कर्व आहे, ते कर्व घालून मी दिस पोर्शन आय विल एक्सप्लेन, बिकॉज मी उगाच तुम्हाला सांगत गेलो कर्व नाही तर कळणार नाही. दिस आय विल शो. देयर व्हॉट यू रिमेंबर इज व्हॉट इज कॉम्प्रेशन इंडेक्स. Compression index is given by this formula, that is change in ratio by log of White's ratio. Cc is given by this formula. So ये सभी फॉर्मूले आप याद रखो. उसके बाद ये Cs के लिए है, सेम फॉर्मूला है, वो सीसी की जगह सीएस होता है, ये भी सेम फॉर्मूला है. और व्हेन लिक्विड लिमिट इज गिवन, हाउ द कंप्रेशन इंडेक्स इज फाउंड. When the liquid limit is given, how the compression index is found, that Cc is given here. Then Cc is given for another type of clay here. These two are for clays, because consistency index is for clay, not for sand. And then I defined what is coefficient of compressibility. It is AV. It is given by this formula. Just to remember the definition of formula. Then coefficient of volume change, MV is equal to AV upon this much, and change in height or thickness is given by with respect to MV, this one. Only these formulas you remember with the definitions. Is it clear? Yes, sir. Okay, beta. So if you solve a few problems, no, you will understand better what I feel is.
Next important topic is what is consolidation settlement. Okay, so this much is not, even if you go without, I mean, detail also, it's okay, because the same things we will learn in next semester also. सेटलमेंट, सो मैं आपको क्या बोला था कि ये सेटलमेंट क्या है और सेटलमेंट क्यों होता, कंसोलिडेशन की वजह से होता। तो देखिए, जब ये सपोज करो आप नीचे का ये सारा फाउंडेशन है, वो ये ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है, नीचे सारा फाउंडेशन में सॉइल है, और ये जब सुपर स्ट्रक्चर का लोड सॉइल पे आता, सॉइल जो भी आपका सॉइल पार्टिकल्स पानी से भरे हुए, और ये पानी निकल जाता, ड्रेन होके बाहर निकल जाता, सिर्फ सॉलिड्स बचता। तो नोट करो, ये फिर ऊपर से लोड गिरता है, रोटेट रोटेट होके एक तरफ दब जाते। ये जब दब जाते, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता, और जब स्पेस क्रिएट होता, ये बिल्डिंग आपका सुपरस्ट्रक्चर धस जाता, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटलमेंट। देखिए, आप एक रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला है, जामुन है, जामुन तो खैर बहुत नरम रहता, रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला जब चाशनी में डुबाया हुआ रहता ना, तो कैसा फूल जाता हो। लेकिन बहुत से लोग खाते समय क्या करते, उसको जब रसगुल्ला खाते आप दबा के सिर्फ जो चाशनी है, जो स्वीट पोर्शन है वो खा लेते, बाद में कैसा पिचक जाता रसगुल्ला, समझ रहे? तो वैसा ही सॉइल पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पर जब सारा पानी निकल जाता है, एवरी पार्टिकल वो रसगुल्ले के जैसा पिचक जाता, जब पिचक जाता वॉल्यूम कम होता, वॉल्यूम कम होता, स्पेस बहुत मिलता, तो सारे जो सॉइल पार्टिकल से पिचक गए, सो नजदीक नजदीक आके डेंस हो जाते, क्योंकि ऊपर से लोड गिरते ही रहता है, रोटेट होके होके। तो जब वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा था, पानी के निकल जाने से पानी का वॉल्यूम तो अब चलेगा, तो वहां पर स्पेस क्रिएट होता, तो स्पेस क्रिएट हो गए जब ऊपर का लोड जो सुपरस्ट्रक्चर है नीचे की तरफ धस जाता, and that is called settlement, and settlement takes place because of consolidation, because of consolidation। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो आपको नहीं भी समझ में आया, यू नीड नॉट वरी, आप जैसा जैसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। आई विल रिपीट द थिंग्स, एंड वंस अगेन आई विल टेल यू, कोई टॉपिक्स आपके रह भी गए, व्हेन वी स्टार्ट फाउंडेशन इंजीनियरिंग नेक्स्ट टाइम, नो, एंड होपफुली आई प्रे टू द गॉड दैट आपका अगर से ऑफलाइन हो गए क्लासेस नेक्स्ट सेमेस्टर तो बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं आपको GT1 भी फिर फाउंडेशन के साथ साथ परफेक्ट करा दूंगा। क्लास में पढ़ाना अलग चीज है, आपको बोर्ड पे पढ़ाए तो बात ही अलग रहती, लेट अस होप दैट। तो वहां पर मैं बहुत सी चीजें रिपीट करता हूँ। ओके, सो नाउ कंसोलिडेशन सेटलमेंट, व्हाट आई वाज टेलिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन से सेटलमेंट होता, और सेटलमेंट कैन बी कंप्यूटेड बाय टू मेथड्स हियर। One is using coefficient of volume change, that is MV, second White's ratio। देखिए, जब कंसोलिडेशन होता तो वॉल्यूम चेंज हो जाता, मैं आपको बोला, तो उसको रख के हम कंसोलिडेशन फाइंड आउट कर सकते। दूसरा, देखिए, सॉइल के पार्टिकल्स भी White's रेशियो, White's कम होते जाते तो White's रेशियो भी चेंज होता। सो बाय यूजिंग दैट वाइड चेंज इन वाइड रेशियो आल्सो we can calculate settlement, so both methods we see। again I will tell you, this topic is in very much detail in foundation engineering। so next semester में क्या पढ़ रहे हैं मालूम है आपको जरा आइडिया होना चाहिए। इस सेमेस्टर में आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मतलब सॉइल और उसके सारे बेसिक प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी पढ़ रहे, कॉम्पैक्शन पढ़ रहे, कंसोलिडेशन पढ़ रहे, ओके, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ पढ़ रहे, उसके बाद शुरू में आप सारे बेसिक प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ लिए, कंसिस्टेंसी, लिक्विड, ये सारा आपको है किसमें, फर्स्ट जियोटेक में। सो व्हेन यू गो टू सेकंड सेमेस्टर यू विल स्टडी अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग। हम सारा ये जो सॉइल टेस्ट करते सिर्फ फाउंडेशन के लिए 90, हमको कहीं यहाँ पर खेती में खाद डाल के हल चलाना नहीं है, सॉइल के प्रॉपर्टीज मालूम करके। वी आर सिविल इंजीनियर, वी आर नॉट एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। सो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन काम क्या है कि हमारा फाउंडेशन मजबूत रहना, तो वो फाउंडेशन के लिए हम सॉइल को स्टडी करें फर्स्ट सेम में, और सेकंड सेम में हम डिटेल में फाउंडेशन पढ़ते। तो वहां पर ये चैप्टर आता है। इतना सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि फाउंडेशन में फिर सेटलमेंट आता, और उस वक्त आपको और मजा आता फाउंडेशन पढ़ते समय, क्योंकि जियोटेक का पढ़े सो रहता थोड़ा। ओके, सो नाउ हियर कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैन बी फाउंड बाय टू मेथड्स।
One is using coefficient of volume change, that is MV. Second is using White's ratio, that is E. Now final settlement using coefficient of volume change. First, the consolidation settlement rho F, when the soil stratum is of thickness H, has fully consolidated under a pressure increment delta sigma dash, is given by rho F is equal to MVH into delta sigma dash. So settlement with respect to coefficient of volume change is given by this formula. Rho F is equal to MVH into sigma dash is given by this formula. Okay, so now this is on the assumption that the pressure increment is transmitted uniformly over the thickness H. हम क्या assume कर रहे, pressure increments equally जा रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं. However, in practical cases under a finite surface loading, the intensity of delta sigma dash decreases with the depth of layer in a non-linear manner. In such a circumstances, the consolidation settlement delta sigma F of an element thickness dz is calculated under an average effective pressure increment and is given by this one. Integrating for the total H, this is given by this one. बस इतना याद रखो. आपको ये थ्योरी में पूछ सकता, इसके प्रॉब्लम शायद ही अब पूछे, अगले सेमेस्टर में पूछ सकता. तो मैं आपको फिर बताता हूं कि सेटलमेंट जो है ये कंसोलिडेशन की वजह से होता. जब आपका पानी निकल जाता तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता. ऑफ कोर्स एयर की वजह से भी, एयर निकल जाने के बाद भी डेंस बन जाता वो कॉम्पैक्शन, लेकिन कंसोलिडेशन सेटलमेंट कंसोलिडेशन की वजह से ही होता. और जब सेटलमेंट होता तो सेटलमेंट हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते. एक है यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, दैट इज एमवी, और दूसरा है यूजिंग वाइट्स रेशियो. Using White's ratio. So coefficient of volume change में, this is the formula generally we give, and what we assume here that that is change in pressure is uniform. लेकिन ऐसा है नहीं. जैसा जैसा डेप्थ बढ़ते जाता, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कम होते जाता. इसीलिए क्या करते हम, एक पर्टिकुलर लेयर के लिए ये फॉर्मूला निकालते और टोटल एच के लिए इसको इंटीग्रेट करते 0 to h तक. दिस इज इंटीग्रेशन का बेसिक. आपको मालूम रहा इंटीग्रेशन बोल तो क्या है. देखिए ये जो हम फॉर्मूला निकाल रहे, हम यहाँ क्या मान रहे कि ये डेल्टा सिग्मा डैश जो है ये सारे थिकनेस के लिए कम है. ऐसा नहीं है. जब आप प्रेशर लगाते ऊपर से, जब सुपरस्ट्रक्चर का लोड आता, ये शुरू में ज्यादा 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 होते हुए कम होते जाता. इसीलिए हम क्या करते, एक्यूरेट मेथड आपको चाहना है तो इसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते. कोई भी एक लेयर कंसिडर करते और उस लेयर का डेल्टा सिग्मा एफ डैश डीजेड हाइट लेके निकालते. एक बार ये निकालने के बाद उसको इंटीग्रेशन करते 0 to h तक, तो you will get the correct value. You will get the correct value. So this is the way by which you can find out what change in settlement. You can find the settlement by using the change in volume concept. Clear है? कुछ डाउट है तो पूछे इसमें प्लीज. सिर्फ याद रखना आपके, इसके प्रॉब्लम शायद आपको पूछे, लेकिन यू शुड नो इट. सेटलमेंट कैसा निकालते, बाय कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, एमवी को यूज करते हुए, एमवी को यूज करते हुए कैसा निकालते, दैट हैज बीन डन हियर. हेलो हेलो ठीक है.
Now next is final settlement by using the White's ratio. By using the White's ratio also you can calculate. The final settlement rho f can also be computed from the following formula. Delta h by h is equal to E naught minus E divided by 1 plus E naught. ये तो सिंपल फॉर्मूला पीछे करे थे हम. डेल्टा एच मतलब सेटलमेंट यहाँ पर, दैट इज रो एफ एंड दिस क्या इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो आप इतने फॉर्मूले याद रखो, दैट इज इनफ. आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू है तो शायद पूछ भी सकता है. लेकिन डिटेल एग्जाम में, ये सेकंड सेमेस्टर आपके कौन से एग्जाम के लिए, अगले एग्जाम के लिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम सेटलमेंट डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है, हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे. If you have any doubts, you can ask here till now. So now I will go for next one more important topic, that is normally consolidated, pre-consolidated, and over-consolidated. Okay. So what is normally consolidated soil? इसके बारे में और मैं अगले क्लास में और बहुत डिटेल में जाऊंगा. Normally consolidated soil means compression index for a, what are these things I will tell you. Compression index for normally consolidated soil is constant. Compression index for normally consolidated soil is constant. Hence substituting the value of E naught minus E in terms of CC. So this is the formula for settlement for normally consolidated soil. Just to remember the formula. Rho f is equal to, for normally consolidated soil, rho, what is normally consolidated, what is over consolidated, what is pre-consolidated, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. For the time being, just to remember what is the settlement for, we are studying about settlement now. What is the settlement for normally consolidated soil? So normally consolidated soil के लिए rho f is equal to, this is the formula. This is the formula. So adjustment करके कैसे. For pre-consolidated soils, final settlement is small in case of pre-consolidated soils, as the recompression index or the swelling index is the very small. Therefore, there it is given by this formula. So this is for compression, this is for swelling, and if you want total settlement, you have to add 1 and 2. 1 and 2. This and this are same almost all. आप देखो, आप सिर्फ यहाँ CC की जगह CSR, CC की जगह CSR. So this formula is also you have to see here. You have to remember lot of formulas. Concept से भी ज्यादा यहाँ पर formula और procedure बहुत है इस chapter में. Here you are very lucky as you are facing MCQ type questions. तो शायद आपको डिटेल में ये अब ना पढ़ना पड़े. But it is my advice to you. Please go through any standard textbook and try to learn what is consolidation. So उससे भी बेहतर है आप YouTube में जाओ, कंसोलिडेशन टॉपिक मारो, बहुत से लोग अपना भाषण दे रहे कंसोलिडेशन के ऊपर बताते रहते, वो आप सुनो कभी टाइम पास करते हुए. आपको टाइम पास करते करते आपको मालूम हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, क्रिकेट, ऑल दीज थिंग्स, you learn the topics. You learn the topics. It will be better for you. Okay. So before going the problems, and this topic is very important. Pre-consolidated, normally consolidated, and under consolidation. और pre-consolidation pressure कैसा निकालते, ये सब हम जाएंगे अगले स्लाइड में. So once again I will repeat the things before going here. So हम क्या पढ़े इस स्लाइड में अब तक. सबसे पहले सेटलमेंट क्या रहता, जनरली बोल रहा हूँ आपको, सेटलमेंट क्या रहता ये आपको मालूम होना चाहिए. और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, सेटलमेंट क्यों होता है बिल्डिंग का, और सेटलमेंट ज्यादा कहाँ होता, ये आपके ब्लैक कॉटन सॉइल में होता. नीचे मजबूत है तो वहां पर सेटलमेंट नहीं होता. देखिए वहां पर पानी रहता ही नहीं, अगर से पानी है भी तो वो सॉइल कैसा रहता, मजबूत रहता बहुत. निकल जाने के बाद भी उतना वॉल्यूम चेंज नहीं होता सॉलिड में. इसलिए whenever you construct a building, what the engineer, I mean इंजीनियर्स फेवरेबल कंडीशन क्या है मालूम है, आपका फाउंडेशन हार्ड रहना. फॉर्चुनेटली फॉर मी, इन माय प्लेस ऑलमोस्ट ऑल सॉइल इज वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बहुत नरम सॉइल बहुत है पंढरपुर. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर को स्किल होना चाहिए. हमारे पास उसकी जरूरत नहीं है, कोई भी बांध सकता, क्योंकि वहां पर कोई, देखिए जब आपका फाउंडेशन हार्ड है
सारा लोड सुपरस्ट्रक्चर का ले रहा है, तो आप कैसा भी डिजाइन करो वहां कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सारा लोड सुपरस्ट्रक्चर का आपका फाउंडेशन ले रहा है वहां पर। बट अनफॉर्चुनेटली हियर यू नीड द स्किल। यहाँ बहुत कैलकुलेशन, पहले तो आपको सॉइल के पूरे टेस्ट करने पड़ेंगे फाउंडेशन के, उसके बाद किस टाइप का सॉइल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका बेयरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, वो कितना लोड लेता, उसके बाद आपको कितने डेप्थ तक जाना पड़ता फाउंडेशन वो भी देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। सर प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, सो दिस विल हैपन, सेटलमेंट विल हैपन। और अगर से सेटलमेंट विद इन द लिमिट्स है, इट्स ओके, अगर से बियॉन्ड द लिमिट हो गया, आपका बिल्डिंग टर्न भी हो सकता। कभी कभी सेटलमेंट कैसा रहता, सपोज करो ये फाउंडेशन है और यहाँ पर कम सेटलमेंट होता, यहाँ ज्यादा सेटलमेंट होता इस साइड में, तो आपका बिल्डिंग ऐसा ओवरटर्न हो जाता राइट हैंड साइड में, क्योंकि इधर सेटलमेंट ज्यादा हो गई इस साइड। आर यू फॉलोइंग मी? प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं ये सबसे ज्यादा। तो ये आपको सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतना सब जियोटेक इसीलिए पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली ये जो हम अब तक पढ़े ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका पूरा एप्लीकेशन हम फाउंडेशन में करने वाले हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मोर और लेस फाउंडेशन इंजीनियरिंग होगी। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे, चाहे वो रोड हो, डैम हो, ब्रिज हो, सुपरस्ट्रक्चर्स हो, बिल्डिंग हो, इनका सब फाउंडेशन के बारे में जो हमको स्टडी करना है, और उसके लिए हम सॉइल के सारे प्रॉपर्टीज इतना डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप इसमें इंटरेस्ट और डेवलप करो, पूरे एक्सपेरिमेंट कर लो। क्लास ले Got it? So this is all the things. सेटलमेंट देखो, तो सेटलमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज से कैसा निकालते, ये फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद सेटलमेंट प्रेशर अलग अलग रहता, इसलिए हम इंटीग्रेशन करते। उसके बाद वाइड्स रेशियो का ये फॉर्मूला याद रखो आप, सेटलमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, इट इज फॉर द सिलेबस, दैट कैन बी आस्क्ड। एंड देन व्हाट इज द सेटलमेंट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड, व्हाट इज प्री कंसोलिडेटेड। अच्छा, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्या है, प्री कंसोलिडेटेड क्या है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। यस, उसके बाद जनरली ये दोनों ऐड करना पड़ता फुल सेटलमेंट के लिए। तो सेटलमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत कम पढ़े तो भी चलता, क्योंकि सेटलमेंट जो है ये टॉपिक हम अगले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। सो टुडे आई विल शेयर योर पीपीटीज कौन कौन से हैं, मेरे को जरा शाम को याद दिलाओ। टीचिंग डायरी में भी डालता हूँ, हो सके तो आपको ग्रुप में भी डाल देता हूँ। टीचिंग डायरी में भी लगाता हूँ, ग्रुप में भी डालता हूँ। टीचिंग डायरी में मेरे ख्याल से वीडियोस पूरे अपडेट हो गए। एंड वन स्टूडेंट वाज टेलिंग दैट कि 21 नहीं है ना, 21 को मैं फिर रिप्लेस करता हूँ। 20 अगर से डबल आया हुआ है तो उसको भी मैं 21 भी डाल देता हूँ। क्या हो सकता है मैं 21 आपके साथ शेयर किया होगा, देखो ग्रुप में, नहीं तो मैं फिर भेज देता हूँ, whatever it is. Okay, again I take a break of 1 or 2 minutes, then I will continue the class.